Go to the epistles and you can take everything, every verse. और आप पत्रियों में जाकर उसमें से हर एक वचन अपने आप के लिए ले सकते हैं. In the Gospels. सॉरी अंकल. In the Gospels also. सुसमाचार. 4 सुसमाचार. In 4 Gospels also there's history and there is teaching. चारों सुसमाचारों में इतिहास भी है और शिक्षा भी है. Love one another, that is teaching. एक दूसरे से प्रेम करो, ये शिक्षा है. Forgive one another, that is teaching. एक दूसरे की क्षमा करो, ये भी शिक्षा है. Jesus healed everybody, that's not doctrine, that is history. यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, ये शिक्षा नहीं, ये इतिहास है. But some people take that and say, therefore today also everybody will be healed. पर कुछ लोग यही उठाकर कहते हैं कि आज भी सब लोग चंगे होंगे. And even though people are not healed, they still keep preaching that lie. और यद्यपि लोग चंगाई नहीं प्राप्त करते, फिर भी उसी झूठ का वो प्रचार करते हैं. You want to understand the Bible properly. अगर आप बाइबल को सही से समझना चाहते हो तो distinguish between doctrine and history. सिद्धांत और इतिहास के फर्क को करें. Paul and Barnabas fought with each other, Acts chapter 15. प्रेरितों 15 में पौलुस और बरनबा ने एक दूसरे से लड़ाई की. What doctrine do you get from that? उससे आप कौन सा सिद्धांत प्राप्त करते हो? It's very dangerous to get doctrines from Acts of the Apostles. इसमें बड़ा खतरा है कि अगर हम प्रेरितों से सिद्धांत लेने लगे तो But you will be dishonest by taking some verses and not taking other verses. और आप ईमानदार नहीं रहोगे क्योंकि आप कुछ वचन उठाओगे, कुछ नहीं लोगे. Jesus healed everybody is history, not a doctrine. यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, ये इतिहास है, कोई सिद्धांत नहीं. So I'm just trying to clarify the fact that the fullness of the Holy Spirit is not marked by selling all our property or by speaking in tongues. मैं केवल इस सत्य का स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी का ये प्रमाण नहीं है कि हम अपने सारे जायदाद को बेच देते हैं या अन्य भाषा में बात करते हैं. God does not give the gift of tongues to everybody. परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान हर एक को नहीं देता. Just like he does not give the gift of prophecy or teaching to everybody. बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भविष्यवाणी करने की या उसका वरदान सबको नहीं देता. I am not against the speaking in tongues. मैं अन्य भाषा में बात करने के खिलाफ नहीं हूं. I have spoken in tongues myself for the last 46 years. मैंने खुद पिछले 46 वर्षों में अन्य भाषा में बात की है. I didn't seek it, God gave it to me. मैंने उस वरदान को नहीं खोजा, परमेश्वर ने मुझे उस वरदान को दिया. My wife has been speaking in tongues for even longer than that. मेरी पत्नी तो उससे ज्यादा समय से अन्य भाषा में बोलती है. Not seek for it. पर हमने उसका खोजा नहीं. We don't seek for these things. हम इन बातों को खोजते नहीं. I did not seek to be a teacher of God's word. God made me a teacher. मैंने ये नहीं खोजा कि मैं परमेश्वर के वचन का शिक्षक बनूं. परमेश्वर ने मुझे एक शिक्षक बनाया. I only wanted to love God with all my heart. That's all. मैं केवल अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना चाहता था, बस उतना ही. Don't seek for a gift which God may not want you to have. एक वरदान की खोज ना करे जो परमेश्वर शायद नहीं चाहता आपके पास हो. Very often that is for seeking honor. कई बार ये इसलिए क्योंकि हम आदर चाहते हैं. You listen to somebody and say, I want to preach like that. आप किसी को सुनकर कहते हो मैं वैसा प्रचार करना चाहता हूँ. Glorify God, but to get honor yourself. परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, अपने आप के लिए आदर प्राप्त करने को. Instead of that, उसके बजाय obey this word. इस वचन की आज्ञा माने. Seek after love with all your heart. अपने पूरे हृदय से प्रेम को खोजे. Run after it. उसके पीछे दौड़े. You know, like in India, sometimes you're going to a bus stand and you find the bus is already leaving. और भारत में कई बार आप बस स्टैंड पर जाते हैं और बस वहां से निकल चुकी होती है. Because in many of our Indian buses, there's no door that shuts. The door is open always. क्योंकि हमारे भारतीय बस जो होते हैं उसमें दरवाजा बंद नहीं होता, दरवाजा हमेशा खुला होता है. You run and catch it. आप दौड़कर उसे पकड़ लेते हो. That is the picture I have in my mind. वही चित्र मेरे मन में है. Run and catch that love before you lose it. और उस प्रेम को खोने के पहले उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ लो. Run after love, the Bible says. बाइबल बताती है प्रेम के पीछे दौड़ो. Pursue after love. प्रेम के पीछे खोजो. 1 Corinthians 14 verse 1. पहला कुरिन्थियों 14 उसका पहला वचन. Pursue after love. प्रेम का अनुकरण करो. That means run after it. का मतलब है प्रेम के पीछे दौड़ो. Don't miss the bus. उस बस से वो बस ना छूट जाए. Run and catch it. दौड़कर उसे पकड़ लो. That should be our attitude to everybody. ये हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा रवैया होना चाहिए.
To that, we ask God to fill us with the Holy Spirit. और ये करने के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे। What Jesus came to do. यही यीशु करने के लिए आया। I want to say, yesterday I spoke about our sins being forgiven. और कल मैंने बात की हमारे पापों के क्षमा के विषय में। The purpose of cleaning the cup is forgiveness is like cleaning the cup. और क्षमा करने का मतलब है एक प्याले को अंदर से साफ करना। Then we got to fill it. What do you fill it with? और फिर हमें उस प्याले को भरना है। आप किस बात से उसे भरते हो? Don't fill it with preaching. उसको प्रचार से ना भरे, Fill it with love. उसे प्रेम से भरे। And then we can desire to give a word to somebody to encourage them. और फिर हम ये लालसा रख सकते हैं कि हम एक वचन किसी को देंगे जो उनको प्रोत्साहित करेगा। There's in 1 Corinthians 14, you can desire to prophesy. और फिर 1 कुरिन्थियों 14 कहता है कि आप भविष्यवाणी करने की इच्छा रख सकते हो। Described in verse 3 as speaking to people for encouragement and comfort. और तीसरे वचन में इसका वर्णन किया गया है। भविष्यवाणी मतलब लोगों की उन्नति, उपदेश और उनके सांत्वन करने की, To challenge them. और उनको एक चुनौती देने के लिए। You don't have to be a preacher to do that. ये करने के लिए आपको प्रचारक होने की जरूरत नहीं। You can comfort a person when you're speaking on the phone. आप किसी को सांत्वन दे सकते हो फोन पर बात करके। You can encourage a person who came to visit you in your home. कोई व्यक्ति आपको घर में मिलने आता है, उससे आप प्रोत्साहित कर सकते हो। That is prophesying. वो है नबूवत करना। Speaking a word to encourage or challenge somebody. एक ऐसा वचन शब्द कहना जिससे लोग प्रोत्साहित हो जाए या किसी को चुनौती मिले। When you write an email, जब आप एक ईमेल लिखते हो, give a word of encouragement or challenge एक प्रोत्साहन का शब्द, एक चुनौती का शब्द लिखे or comfort. या सांत्वन का शब्द। When you speak on the phone, जब आप फोन पर बात करते हो, someone visits your home, कोई आपके घर पे आता है, you meet somebody somewhere. आप किसी को कहीं मिलते हो, What does it mean to prophesy? इसका क्या मतलब है भविष्यवाणी करना? Lord, let me give him one sentence that will encourage him प्रभु मैं or उससे challenge him to a godly life. प्रभु मैं उससे एक वाक्य कहना चाहता हूं जो उसको प्रोत्साहित करेगा या एक ईश्वरीय जीवन के लिए चुनौती देगा। Husbands and wives, encourage one another. पति पत्नियां एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, But it must come out of a heart of love. पर वो एक प्रेम भरे हृदय से आना चाहिए। That's why it says here, first pursue after love. और इसी वजह से यहाँ लिखा है पहले प्रेम की खोज करो। The only way I can do that is by saying, Lord, I want to be filled with the Holy Spirit all the time. और ये करने का इकलौता मार्ग है कि मैं प्रभु से कहूं कि प्रभु मैं निरंतर पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। In conclusion, अंत में Hebrews chapter 8, इब्रानियों की पत्री इसका 8वां अध्याय, God said in verse 10, 10वें वचन में परमेश्वर कहता है, this is the new covenant I'm going to make with my people. ये नई वाचा है जो मैं अपने लोगों के साथ बांधूंगा। Hebrews 8:10, इब्रानियों 8:10, I will put my law into their mind and write them in their heart. मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। What does that mean? इसका क्या मतलब है? That means God will fill my mind with love and he'll fill my heart with love because that is his law. इसका मतलब परमेश्वर मेरे मन को प्रेम से भरेगा, मेरे हृदय को प्रेम से भरेगा, क्योंकि वही तो उसकी व्यवस्था है। You know, in the Old Testament, पुराने नियम में Moses went to the mountain and God gave him 2 pieces of stone. और मूसा उस पर्वत पर गया और परमेश्वर ने उसे 2 पत्थर दिए, Where the law was written on both those stones. और उन दोनों पत्थरों पर जो व्यवस्था है वो लिखी गई थी। That was the 10 commandments. वो 10 आज्ञाएं थी। Today, आज God says these 2 stones are your mind and your heart. परमेश्वर कहता है आज ये 2 पत्थर तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय है। He says, just like I wrote for Moses on those stones, now I will write on your mind and your heart. और वो कहता है जैसे मूसा के लिए मैंने उन 2 पत्थरों पर लिखा, अब मैं तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय में लिखूंगा। And our mind and our heart are even harder than those stones. और हमारा मन और हमारा हृदय उस पत्थर से भी कठोर है। We don't love people, we love ourselves. हम लोगों से प्रेम नहीं करते, हम अपने आप से प्रेम करते हैं। What makes our heart and mind and heart hard? और इसी की वजह से हमारा मन और हमारा हृदय कठोर हो जाता है। In that hard heart which loves only ourselves, पर उस कठोर हृदय के अंदर जो केवल अपने आप से प्रेम करता है, God says, I will write my law of love. परमेश्वर कहता है मैं अपने प्रेम की व्यवस्था वहां लिखूंगा। That 1 Corinthians 16 verse 14 will be fulfilled in your life. ये 1 कुरिन्थियों 16:14 आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। God will do it.
परमेश्वर वो करेगा that everything you do, you will do out of love. कि आप जो कुछ करो आप प्रेम से करोगे, Everything you speak out of love. जो कुछ आप कहोगे आप प्रेम से कहोगे। In the beginning, you try and you'll fail, you'll try and you'll fail, and you try and you'll fail. शुरुआत में आप कोशिश करोगे, असफल रहोगे, कोशिश करोगे, असफल रहोगे, कोशिश करके असफल रहोगे। What should you do? फिर आपको क्या करना है? Go to God in brokenness. टूटेपन में परमेश्वर के पास जाए, Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा करे, Can't do this. मैं ये नहीं कर सकता, Be with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Shed abroad your love in my heart and mind. आपके प्रेम को मेरे हृदय और मन में उंडेल दे। Write your love in my mind and in my heart, आपके प्रेम को मेरे मन में और मेरे हृदय में लिखे, so that everything I say and everything I do will be out of love. ताकि जो कुछ मैं कहूँ, जो कुछ मैं करूँ वो प्रेम के द्वारा हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you take what I say seriously, अगर जो मैं कहता हूँ उसे आप गंभीरता से ले तो you will see a change in your life in the next 3 months. आप अपने जीवन में आने वाले 3 महीनों में एक बदलाव को देखोगे। You'll find a heavenly atmosphere coming into your home. आप देखोगे कि आपके घर में स्वर्ग का वातावरण आ गया है। But if you don't thirst for this life, it will never come. पर अगर इस जीवन की आप प्यास नहीं करोगे तो वो कभी नहीं आएगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us, Lord, to take your word seriously. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन को गंभीरता से लें। You know our hearts. आप हमारे हृदयों को जानते हैं। Don't let anyone forget what they heard today. प्रभु आज कोई भी इस बातों को न भूले जो उन्होंने सुनी है। Keep on reminding them until it is fulfilled in their life. उन्हें इन बातों की याद दिलाते रहे जब तक कि वो उनके जीवन में पूरा नहीं हो जाता। In Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen.